Good evening, students. Our chapter cell, the functional unit of life, is going on. In this chapter, we have completed till the prokaryotic and eukaryotic cells in the last class. Today, we are starting from the page number 96. While observing the onion cells under the microscope, did you notice any blank looking structures in the cytoplasm? It is called vacuole. It could be single and big as in the onion cell. Cheek cells have smaller vacuole. Large vacuoles are commonly in plant cells. Vacuole in animal cells are much smaller. Students, now listen to me very carefully. See this diagram, please. This is the diagram of plant cell. In this area that is called vacuole. Vacuole देखो क्या होता है. Vacuole is generally called the stomach of the cell in which the food is digested basically. ठीक है, इसमें इतना डीपली आपको बताया नहीं है, पर मैंने आपको बता दिया कि vacuoles जो होते हैं they are generally stomach of the cell. And in the plant cells the vacuoles are large in size, but in the animal cells they are smaller in size. Okay students, सिर्फ इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि वैक्यूल जो होता है किसी भी सेल का वो पार्ट है जो ब्लैंक होता है बिल्कुल. एंड सेकेंडली इट इज़ एक्टिंग लाइक अ स्टमक ऑफ द सेल. इन द प्लांट सेल दे आर लार्ज इन साइज, इन द एनिमल सेल्स दे आर स्मॉलर इन साइज. You might have noticed several small color bodies in the cytoplasm of the cell of Tradescentia leaf. They are scattered in the cytoplasm of the leaf cells. They are called plastids. They are of different color. Some of them contain green pigment called chlorophyll. Green colored plastids are called chloroplast. They provide green color to the leaves. You may recall that chlorophyll in the chloroplast of leaves is essential for photosynthesis. Now listen to me. प्लास्टिड्स क्या होते हैं? जो हमारी सेल का साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे कलर्ड छोटे छोटे कलर्ड पिगमेंट होते हैं. उसी को क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं. जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो ग्रीन कलर का है. अभी जो प्लास्टिड्स होता है, प्लास्टिड्स आर द स्मॉल पार्टिकल एंड स्मॉल कलर बॉडीज विच आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म. ओके. और जो प्लास्टिड्स होते हैं ये बेसिकली बेटा 3 टाइप्स के होते हैं. इसको आपको 9th क्लास में पढ़ाया जाएगा. जो प्लास्टिड्स होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं बेसिकली. हमें यहाँ पर एक ही प्लास्टिड पढ़ना है, दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट का कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर होता है. क्लोरोप्लास्ट का कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर. प्लीज़ अंडरलाइन दीज लाइन्स. सम ऑफ दैम कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. जो क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड होता है इनका कलर ग्रीन होता है. इनका कलर ग्रीन इसलिए होता है क्योंकि उनमें एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल. एंड क्लोरोफिल इज़ द पिगमेंट ड्यू टू विच द लीफ ऑफ द कलर इज़ ग्रीन. एंड दिस पिगमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस ऑफ द प्लांट. जहाँ प्लांट में ग्रीन पोर्शन होता है उसी पार्ट का फोटोसिंथेसिस होता है. जहाँ ग्रीन पोर्शन नहीं होता है उस पार्ट का फोटोसिंथेसिस भी नहीं होता, क्योंकि ग्रीन पार्ट का मीन्स ये है कि वहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है. इफ़ द क्लोरोफिल इज़ प्रेजेंट then the photosynthesis process will be taken out. If the chlorophyll is absent there will be no photosynthesis process. Okay students. Comparison of plant cell and animal cell. If you recall activity 8.3 and 8.4, you should be able to compare plant and animal cells. Observe the plant and animal cells carefully. Let us tabulate the similarities and distinguishing features of plant and animal cells. Only a few features are mentioned. You may add more in table 8.1. Beta, here are given the diagrams of plant and animal cell. This is the diagram of plant cell and this is the diagram of animal cell. सबसे पहले एक चीज़ तो हम ये पढ़ चुके हैं, जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ कि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है, एनिमल सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होता है. प्लांट सेल में सेल वॉल होता है पर एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, क्योंकि एनिमल सेल की जो सेल्स होती है दे आर सॉफ्ट.
प्लांट सेल में भी न्यूक्लियस होता है, एनिमल सेल में भी न्यूक्लियस होता है। प्लांट सेल में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, एनिमल सेल में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म होता है, एनिमल सेल में भी होता है। प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होते, क्योंकि एनिमल सेल में कोई ग्रीन और ब्लू और रेड कलर नहीं होता कभी भी, ठीक है। वैक्यूल्स की बात करें तो प्लांट सेल में बड़े होते हैं और एनिमल सेल में छोटे होते हैं या स्मॉलर होते हैं। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द प्लांट सेल और एनिमल सेल। ओके स्टूडेंट्स।